اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس 12 سبجیکٹ فزکس جو آج کا ٹاپک ہے وہ پیٹرن آف میگنیٹک فیلڈ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ٹاپک میں ہم نے کرنٹ پاس کیا ہے دو پیرلل کنڈکٹرز کے تھرو، لیکن پہلے کیس میں کنڈکٹرز کے لیے جو کرنٹ لیا وہ ایک ہی ڈائریکشن میں لیا، جیسا کہ اس میں ہے، دیکھو ایک ہی ڈائریکشن میں. اب سیکنڈ کیس میں جو کرنٹ لیا ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں لیا ہے. پہلے کنڈکٹر میں ایسے اپورڈ کی طرف اور اپورڈ ڈائریکشن میں، دوسرے کنڈکٹر میں ڈاؤن ورڈ کی طرف ڈائریکشن دکھایا کرنٹ کا، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں پتہ ہے کہ جب کرنٹ پاس ہو رہا ہے کسی کنڈکٹر میں وہاں میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوتا ہے. وہ میگنیٹک فیلڈ جو کریٹ ہوتا ہے دیٹ از جسٹ ایز کنسنٹرک سرکلز اراؤنڈ دی کنڈکٹر، ٹھیک ہے نا. اب اس سچویشن میں جو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوا ہے اس میگنیٹک فیلڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک جیسا ہے، لہٰذا اس میں جو میگنیٹک فیلڈ دو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوئے ہیں یہاں میگنیٹک فیلڈ آپس میں اٹریکٹ کر رہا ہے. وہ فورس جو ہے وہ فورس اٹریکٹیو فورس بنتا ہے میگنیٹک فیلڈ کے بیچ میں. مان لیجیے پہلے کنڈکٹر میں میگنیٹک فیلڈ B1 کریٹ ہوا ہے، دوسرے میں B2 کریٹ ہوا ہے. ان کے بیچ میں جو فورس جو نیچر آف دا فورس ہے وہ ہے اٹریکٹ. اب سیکنڈ کیس میں کیا ہے، یہاں بھی کرنٹ پاس کرایا اس پہلے کنڈکٹر میں لیکن اس کی ڈائریکشن اپورڈ ہے، لیکن جو دوسرے کنڈکٹر میں کرنٹ پاس کرایا ہے وہ اس کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہے، یعنی جو ڈائریکشن آف دا کرنٹ از اپوزٹ ٹو ایچ ادر. پہلے کنڈکٹر میں بھی میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوا ہے جسٹ سرکلز کنسنٹرک سرکلز، ٹھیک ہے نا. اب دوسرے کنڈکٹر میں بھی یہ میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہوا ہے جسٹ کنسنٹرک سرکلز، لیکن جو ڈائریکشن ہوتا ہے میگنیٹک فیلڈ کی دیٹ از جسٹ ٹینجنٹ ٹو دا سرکل، جسٹ ٹینجنٹ ٹو دا سرکل، ٹھیک ہے نا. لیکن جو فورس جو یہاں جو نیچر آف دا میگنیٹک فیلڈ جو یہاں ہے، جو یہاں فورس ان کے بیچ میں ہے وہ ریپلسو فورس ہے. اب سمجھ لیا ہم نے، جب کرنٹ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہا ہے دو کنڈکٹرز میں وہاں اٹریکٹیو فورس ہوتا ہے بیچ اس میگنیٹک فیلڈ کا. جہاں دو کنڈکٹرز کے بیچ میں پیرلل کنڈکٹرز کے بیچ میں ڈائریکشن اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ریپلسو فورس ہوتا ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا. اب چونکہ ہم نے بات کی کرنٹ کا جو ایسا یونٹ ہے اس کا ایسا یونٹ ہے ایمپیئر. لہذا ڈیفینیشن آف ایمپیئر کیا ہے، ایمپیئر جب بھی ہم کرنٹ کی بات کرتے ہیں وہی سے 10 ایمپیئرس 1 ایمپیئر لائک دیٹ، ٹھیک ہے نا. ڈیفینیشن آف ایمپیئر مینس سمپلی 1 ایمپیئر، ٹھیک ہے نا. یہ 1 ایمپیئر کیا ہوتا ہے، یہ اماؤنٹ آف دا کرنٹ پاسنگ یونٹ کرنٹ پاسنگ تھرو اے کنڈکٹر اینی کنڈکٹر، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پاس چونکہ اس سے پہلے جو ٹاپک لیا اس میں ریلیشن حاصل کی، وہ ریلیشن ہم یہاں استعمال کر کے یعنی F2 از اکول یا سمپلی F از اکول μ0 ڈیوائڈ بائی 4 ٹوائس I1 I2 ڈیوائڈ بائی R. یہ I1 جو ہے دس از دا اماؤنٹ آف کرنٹ پاسنگ تھرو فرسٹ کنڈکٹر، دس I2 از دا اماؤنٹ آف کرنٹ پاسنگ تھرو سیکنڈ کنڈکٹر. لیکن جو R ہے ان کے بیچ میں ڈسٹینس ہے، یعنی یہ کس دوری پہ آپس میں R کی دوری پہ. لیکن جو یہ μ0 ڈیوائڈ بائی 4 ہے دس از دا پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس، کیونکہ ہم نے کنڈکٹر کو ایک فری اسپیس میں رکھا ہے جہاں میڈیم کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. لہٰذا μ0 ڈیوائڈ بائی 4 جو یہ ہے یہ کہلاتا ہے پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس، ٹھیک ہے نا. آپ لیٹ کرتے ہیں چونکہ ہمیں 1 ایمپیئر کی بات کر رہے ہیں. جو کرنٹ پہلے کنڈکٹر میں پاس کرایا اس کا میگنیچیوڈ بھی ایک ہے 1 ایمپیئر ہے. جو کرنٹ ہم نے پاس کرایا دوسرے کنڈکٹر میں اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بھی 1 ایمپیئر ہے. لیکن ان کے جو بیچ میں جو فاصلہ ہے سے دیٹ از 1 میٹر، یعنی 1 میٹر کی دوسری دوری پہ ان کو ہم نے رکھا فری اسپیس میں. لیٹ I1 از اکول ٹو I2 از اکول ٹو 1 ایمپیئر، یعنی جو کرنٹ پاس کرایا کنڈکٹر فرسٹ میں وہ بھی 1 ایمپیئر تھا. جو کرنٹ اماؤنٹ آف کرنٹ پاس کرایا کنڈکٹر سیکنڈ میں اس کا جو میگنیچیوڈ دیٹ از آلسو 1 ایمپیئر. اور جو دو یہ آپس میں دور رکھا ہم نے کنڈکٹرز کس دوری پہ رکھا، 1 میٹر کی دوری پہ رکھا. اب F از اکول ٹو سمپلی فورس آف دا میگنیٹک فیلڈ یا فورس بٹوین دا ٹو کنڈکٹرز ڈیو ٹو میگنیٹک فیلڈ. μ0 4 پرمیٹیوٹی آف دا فری اسپیس 2 انٹو I1 کا ویلیو 1 ہے
I2 का वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई R का वैल्यू 1 है। अब ये पूरा का पूरा क्या बनता है, 2 इंटू 1 मीन्स 2, ट्वाइस म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है ना। लेकिन जो ये म्यू डिवाइड बाई 4 पाई इसका जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। दिस इज कॉल्ड ऐसे न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर इज दैट मच करंट। एम्पियर, जब हम एम्पियर की बात करते हैं दैट इज द करंट, ये वो करंट है विच व्हेन, जो जब फ्लोइंग पास हो रहा है कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में, थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग लीनियर कंडक्टर्स, थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल यूनिफॉर्म, यानी लेंथ के एतबार से और क्रॉस सेक्शन के एतबार से ये दोनों मेटालिक कंडक्टर्स का ही, वायर्स का ही, कंडक्टर्स कैरिंग करंट का ही, ये आपस में पैरेलल है। किस सिचुएशन में पैरेलल है, लेकिन हर एतबार में एज पर देयर लेंथ, एज पर देयर क्रॉस सेक्शन ये यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं, है ना। लॉन्ग लीनियर कंडक्टर्स, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, कहाँ रखा, फ्री स्पेस में। इसीलिए हमने म्यू 0 डिवाइड बाई 4 पाई दिखाया कि ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। किस फैसले पे रखा, आपस में 1 मीटर की फैसले पे रखा, यानी जो आर है, आर का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म पैरेलल यूनिफॉर्म, यहाँ लिखा ना यूनिफॉर्म, जो अमाउंट ऑफ करंट पहले कंडक्टर में पास हुआ है वो दूसरे में भी वही पास हुआ है, यानी 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड 1 एम्पियर ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन बोथ यूनिफॉर्म। करंट के एतबार से जो करंट हम इसमें पास करा रहे हैं वो एक जैसा है, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो फैसला वो भी एक जैसा है, ठीक है ना। विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दोनों सूरतों में। नाउ जो अट्रैक्शन और रिपेल्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। फॉर द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट द मैग्नीट्यूड, द 2 फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ क्रिएट होता है वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन फॉर द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट the magnitudes are there for the force of the magnetic field repel each other, जो मैंने पैटर्न में दिखाया है। अब यही समझ लिया अट्रैक्ट कहाँ होता है, वायर देयर इज द करंट इन द सेम डायरेक्शन। रिपेल कहाँ हो रहा है, जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्टर्स के थ्रू करंट जा रहा है। विद ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, किस फोर्स से ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्योंकि न्यूटन पर मीटर मीन्स न्यूटन पर मीटर ये फोर्स है यहाँ ऑफ दियर लेंथ, उनके बीच में जो लेंथ है ये मीटर पर न्यूटन पर मीटर जो है, दिस इज द फोर्स। इस फोर्स से आपस में रिपेल भी कर रहे हैं और अट्रैक्ट, यानी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी इसी फोर्स से ये आपस में अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंटली हम दिखाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ये कैसे रिपेल करते हैं और कैसे अट्रैक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर करंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन किया, एक टब लिया हमने, ट्रफ लिया, ठीक है ना। उसमें हमने मरकरी मेटल, क्योंकि जो मरकरी ये एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड में है, हमने एक ट्रफ लिया, उसमें मेटालिक लिक्विड मरकरी डाला, ठीक है ना। उस मेटालिक मरकरी में हमने 2 मेटालिक कंडक्टर्स डाल दिए ऐसे, ठीक है ना। उनकी डायरेक्शन ये समझो, ये डॉटेड लाइन एक्चुअल बिफोर पासिंग द करंट, द एक्चुअल डायरेक्शन यानी वर्टिकली आपस में रख, किस में रखा, इस मरकरी में रखा, यानी इस पहले कंडक्टर का मेटालिक वायर का 1 एंड लोअर एंड किस में सस्पेंड डिप किया, इस मरकरी में। अब जो दूसरा जो मेटालिक कंडक्टर है वायर का ही, उसका जो लोअर एंड है वो भी किस में डिप किया, इस मरकरी, चूँकि मरकरी इज द मेटल हैविंग ओनली लिक्विड नेचर, लिक्विड सिटी, ठीक है ना। अब यहाँ से चूँकि इनको ज्वाइन कराया 2 मेटालिक कंडक्टर्स को, यहाँ से और एक वायर हमने कनेक्ट की बैटरी से। अब बैटरी से जो की है, की से हम इसको करंट दे रहे हैं, ठीक है ना। जो ही इस की को क्लोज किया है, पहले क्या किया, इनको जो डॉटेड लाइन है बिफोर पासिंग द करंट इट इज़ देयर नॉर्मल डायरेक्शन, ये वर्टिकली सस्पेंड किया है। और समझो ए बी एक मेटालिक वायर है,
जो सस्पेंड किया है इसमें मरकरी में, सी डी दूसरा मेटालिक वायर है जिसको हमने किस में डिप किया, ये आपस में पैरेलल है, डॉटेड लाइन समझो बिफोर पासिंग द करंट इनकी डायरेक्शन है। जो ही की को क्लोज किया वहाँ से क्या हुआ, करंट पास हुआ, करंट पास होने से उनकी पोजीशन चेंज हुई, ये एक दूसरे के नज़दीक आए, पहले दूर थे अब नज़दीक आए, देखो इनके बीच में फैसला, यानी इससे हमें अंदाज़ा होता है ये जब ये आपस में नज़दीक आए, ये किससे नज़दीक आए, बिकॉज ऑफ द फोर्स, दैट फोर्स द अट्रैक्टिव फोर्स। जब जब जो अपोजिट जब दो लाइक करंट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स आपस में नज़दीक आते हैं, क्योंकि मैग्नेट है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इससे हमें अंदाज़ा होता है, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। अब सेकंड केस में क्या किया, सिर्फ करंट जो डायरेक्शन ऑफ द करंट वो चेंज किया, यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ द करंट वो एक जैसा था, नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो करंट यहाँ भी की को क्लोज किया, यहाँ से करंट आया ना, ऐसे करंट आई ना, गई इसमें और फिर चली गई कि इस मेटल में चली गई करंट, मेटल में चलने के बाद इस कंडक्टर में चली गई, जब इस कंडक्टर में चली गई चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में आया इस डायरेक्शन में, आया इस डायरेक्शन में, गई इस डायरेक्शन में, लिहाजा ये जो एक्चुअल डायरेक्शन थी बिफोर पासिंग द करंट, दैट वाज ए बी, दिस डॉटेड लाइन, ठीक है ना। जब इनके बीच में करंट हुआ अब ये आपस में दूर चले गए, अब यहाँ फैसला ज़्यादा हुआ ना, यानी ए बी डैश सी डी डैश देयर इज़ देयर न्यू पोजीशन आफ्टर पासिंग द करंट। अब यहाँ से फैसला बढ़ गया इनके बीच में, इससे अंदाज़ा होता है यहाँ रिपेल होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट जा रहा है, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू करंट्स, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास कराया यहाँ रिपेल हुआ, जहाँ एक ही डायरेक्शन में करंट पास किया यहाँ अट्रैक्ट हुआ, यानी कंडक्टर्स का नज़दीक आना अट्रैक्टिव कहलाता है, कंडक्टर्स का दूर जाना आफ्टर पासिंग द करंट रिपेल्सिव कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखो ऐसी है, 2AB and CD are two conductors carrying current, or two metallic wires का ही suspended vertically parallel to each other, किया ना parallel each other suspend किया ना, the lower ends of the wire are kept inside the mercury in the trough, एक टब में हमने mercury लिया, ये liquid metal होता है, फिर जब the current in the wires can be passed with the help of battery, ई या हैविंग की बैटरी से, जिसमें की है करंट को ऑन करता है, करंट को ये ऑफ करता है, ठीक है ना। इन सीरीज ऑफ सर्किट, किस डायरेक्शन में, सीरीज में, किस कनेक्शन में, सीरीज में लिया, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम, लेकिन करंट जो पास कर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, व्हेन के इज क्लोज्ड, के मीन्स व्हेन के इज क्लोज्ड द वर्टिकल वायर्स ए बी एंड सी डी बेंड टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, एंड टेक द पोजीशंस ऑफ ए बी डैश एंड सी डी डैश, ए बी डैश सी डी डैश नॉर्मल पोजीशन से ये ज़्यादा क्लोज आ गए, दिस शोज लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। इससे हमें क्या पता लग चला, जो लाइक करंट्स हैं, लाइक करंट्स किस डायरेक्शन के एतबार में लाइक करंट्स हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ क्या है, डायरेक्शन जो करंट की है वो अपोजिट है, व्हेन की इज क्लोज्ड, यानी जब हमने करंट को पास किया, की क्लोज करना मीन्स वी पास द करंट, द वर्टिकल वायर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जो वर्टिकल वायर्स इसमें पैरेलल थे वो एक दूसरे दूर चले गए, एंड टेक द पोजीशंस ऑफ ए बी डैश एंड सी डी डैश, दिस शोज दैट अनलाइक करंट्स मीन्स डायरेक्ट currents having opposite directions repel each other, उन्होंने आपस में क्या किया, रिपेल किया। अब आप लोगों ने समझ लिया, डायरेक्शन ऑफ द करंट गिव्स अस अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपेल्सिव फोर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखने के बाद इसको सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।